Hello guys, my name is Meet Trivedi and today we are going to start with SS chapter number 10 Indian agriculture. Since ancient time, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today also main support for the Indian economy is agriculture. Agriculture is an important resource of India. About 60% labor power is engaged in agriculture. Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also came from agriculture. Agriculture occupies 22% of the national product. Crop and other farm products hold about 18% contribution in export, which earns a huge forage in exchange. The Indian economy is mainly dependent on agriculture, thus India is an agrarian country. बहुत ही पुराने ज़माने में से इंडिया की मेन इकोनॉमी एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही है और आज भी इंडिया की इकोनॉमी का मोस्ट सपोर्ट एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। एग्रीकल्चर से अबाउट 60% लोग जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर से सिर्फ हमें खाना ही नहीं, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मिलते हैं। एग्रीकल्चर का टोटल 22% इंडिया में रहता है और बाकी का 18% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट होता है फॉरेन में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और इंडिया की इकोनॉमी आज भी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, इसलिए इंडिया को एग्रीन कंट्री कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round of the year cultivation, irrigation, skill. In most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round the year cultivation, irrigation, skill and hard working of farmers. Even then, the progress in the field of agriculture is not sufficient. The Indian farmer are generally poor and uneducated. Agriculture production in India is much less compared to the world due to the reasons like inadequate facility of agriculture, irregular and uncertainty of rain, more population, larger families, smaller farms, no interest in experimentation, less uses of chemical fertilizers, modern machinery and scientific approach for the cultivation, educated mass obtained away from agriculture, the so-called लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी एक्सेट्रा। इंडिया में आज भी 2 और 2 से ज़्यादा तरह के एनुअली हर साल अलग अलग क्रॉप होते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से लाइक फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट क्लाइमेट होता है, इरिगेशन की डिफरेंट मेथड्स होती है, फिर फार्मर का हार्ड वर्क एक्सेट्रा। इंडिया की एग्रीकल्चर के रिलेवेंट प्रोग्रेस आज भी इतनी सफिशेंट नहीं है वर्ल्ड से कंपेयर करके, क्योंकि हमारे पास उतने साइंटिफिक मॉडर्न मशीनरीज भी नहीं है, हमारे पास उतनी इरेगुलर रेन भी है, हमारी पॉपुलेशन भी है, हमारी फैमिलीज भी बड़ी होती है, स्मॉल फार्म्स भी हमारे छोटे होते हैं और हमारे यहाँ पे किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ही नहीं होता है और हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ नहीं करते, मॉडर्न मशीनरीज भी यूज़ नहीं करते, इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर उतना बड़ा नहीं है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द एंटायर इंडियन इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द irrigation methods, farm outputs, economic return. एग्रीकल्चर का सोशल इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पीपल की एग्रीकल्चर के रिलेवेंट बहुत ही कम है और फार्मिंग की टाइप्स भी अलग अलग मेथड्स होती है, वो हम आगे बढ़े। Subsistence farming. After independence, many agriculture development projects are implemented, yet the economic condition of Indian farmers is very weak even today. Costly seeds, fertilizers and use of pesticides are not affordable in the smaller farms holding. The farm production is just sufficient for his family, which is consumed in the maintenance of the family. This is called subsistence farming. So even today Indian agriculture is considered to be an activity for life maintenance only.
आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी अलग अलग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुए हैं इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फिर भी एग्रीकल्चर में उतना नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सीड्स भी कॉस्टली होते हैं, फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होते हैं, और जो गरीब फार्मर्स होते हैं, वो पुअर फार्मर्स, वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर का मतलब है सिर्फ लाइफ मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत कमाना। सो गाइस, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।